Welcome back. So last couple of classes we have studied class components. We started with class components almost a week back. We started discussing about what exactly class is, what is object, why do we need class object, and what is the need of that. So उसमें बहुत सारी चीजें देखी, what exactly classes, different types of classes, singleton class, mutable class, immutable class, object क्या होता है real world में और programming में, then कैसे class create करते हैं, what is the syntax to create that, how do we write a class, how do we create object using new keyword, what is a reference variable, what is an object, how this particular thing works, primitive variable क्या होता है, non primitive, and different class components. Then we started with the class components. Then we have noted down all the class components. Then we started with the basic variable. Variable hota kya hai actually, once again, and the types of variables based on the usage. Local variable, instance variable, static variable. कौन सा यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ पर स्टोर होता है, मेमोरी कब मिलता है, मेमोरी से कब हट जाता है, स्कोप क्या है, उसे कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. We discuss about then second class about functions or methods, different names for functions or methods. What is method definition, what is method call, what exactly method is, why, how do we define a method, different syntax, how do we call methods, then types of methods, static, non-static, what is this keyword, and how do we call the methods from different places, that also we discuss. So we discuss about how do you call methods from different locations. Right? So these are the different things we talked about. Then we also discuss about this typical controller service DAO layer. Then followed class, we talked about how to create object, what is a constructor, why do we need constructor, what are the different types of constructors are there, and when to use what, copy constructor kya hota hai, what is constructor overloading, constructor chaining, what is method overloading, and then we lastly we talked about blocks as well, right? So what is instance block, what is static block, when do we use that, so that also we discuss. Static block, how to load a class in the memory, what is the order of execution of different things in the program. So I will just quickly ask you the couple of questions and then we'll take it. Okay. Now first question, Akshay, static block कब execute होता है? So static block execute hota hai when the class is loaded in the memory. Okay. Ayan, how do we load a class in the memory? क्या तरीके हैं जिससे हम क्लास लोड कर सकते हैं? Perfect. That is one. कि object create करो आप and your class will be loaded. Then what is other way? For name, हाँ, for name एक तरीका है. What is for name? Yes. What is for name? Pushkar. Class dot for name. Okay. So class नाम का एक class है, उसके अंदर एक static method है, right? That is used to load a class. So for name method को हम क्या देते हैं? What is the input we give? Class name, complete package name के साथ. Okay. Static block में हमने कौन सा logic लिखना चाहिए? What kind of logic we should be writing? कब यूज करना चाहिए स्टैटिक ब्लॉक? नहीं, रियल लाइफ मुझे प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम मुझे स्टैटिक ब्लॉक कब यूज करना चाहिए? कितनी बार चलता है स्टैटिक ब्लॉक बाय द वे? एक ही बार चलता है. तो ऐसा कौन सा काम है जो हम एक ही बार करेंगे? परफेक्ट. सो डेटाबेस कनेक्शन हो गया, सर्वर कनेक्शन हो गया, ये वन टाइम वाला लॉजिक हम लिखेंगे किसके अंदर? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर. ठीक है. पुष्कर इंस्टेंस ब्लॉक कब चलता है, कितनी बार चलता है?
जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार आपका इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा। ठीक है। अ, श्रावणी, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? हम्म। Okay, you want to create an object, new object using existing object. Then we use copy constructor. Okay. Uh, Akshay, what is this keyword? Current class object. So this is a reference variable or a keyword that is a pointing to current class object. So हम this keyword static method में क्यों नहीं use कर पाते? क्योंकि आपको ये गारंटी है कि स्टैटिक मेथड कॉल होगा तो कैसे होगा? क्लास नेम से। उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी का आंसर से आपको बता सकते हो कि स्टैटिक हमारी मेथड कौन सी, मेन मेथड स्टैटिक क्यों है? वाई मेन मेथड इज स्टैटिक? सो दैट यू कैन इजीली, मतलब अगर स्टैटिक नहीं होती तो जावा को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता? परफेक्ट। सो मयूरेश, कैन यू एक्सप्लेन मी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन? व्हाट इज? इज इट स्टैटिक, नॉन स्टैटिक? So how do we access static methods? So if you want to call static method, how do you call that? Using class name. And instance methods? Okay. So println method, how? So println method, you said it is present inside the print stream class. Okay. It is static, non-static? If it is static, then it has to be called by class name. If it is non-static, then it has to be called by reference. So out is a, so you are calling println method using out reference. So is println static or non-static now? Non-static, right? So out is a reference. Using that, you are calling println method. Okay. So what exactly out is? What type of it is? It is a reference variable, right? What is the type of that variable? Static reference variable. Okay, that is the static. Okay, but what type of it is? Integer, string? What type of it is? वेरिएबल है ना वो? तो वेरिएबल कोई ना कोई टाइप का डेटा स्टोर होता होगा उसमें। सो व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट स्टोर्स? class type data, print string. ठीक है, क्लास टाइप डेटा। हाँ, क्लास टाइप डेटा। कौन से टाइप का क्लास? परफेक्ट। Print प्रिंट स्ट्रीम। सो वो रेफरेंस किससे रेफर कर रहा है? इट इज रेफरिंग टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम। और आउट कहां पर बना के रखा है? सिस्टम क्लास के अंदर। सो सिस्टम क्लास के अंदर एक आउट नाम का रेफरेंस है, दैट इज अ स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल। वहां पर क्यों बना के रखा है? बाय द वे, प्रिंटल मेथड क्या करता है? प्रिंट करने का काम। तो अगर आपको वो मेथड अगर नॉन स्टैटिक होता तो क्या करना पड़ता? हाँ, नॉन स्टैटिक ही है वो, दैट इज अ नॉन स्टैटिक। अगर उसका ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर मेथड को हमें कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बार बार। जितनी बार भी आप प्रिंट करना चाहते हो तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रिडंडेंसी, जावा ने उसका ऑब्जेक्ट बना के रखा है ऑलरेडी। वेयर इट इज प्रेजेंट? हाँ, उसका रेफरेंस कहां पर प्रेजेंट है? सिस्टम क्लास के अंदर। दैट्स द रीजन वी डू सिस्टम डॉट आउट। सिस्टम एक क्लास नेम है, आउट इज अ रेफरेंस, स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, इसलिए हम उसे एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग क्लास नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट println. So out is a reference variable. Using that, we are able to call println method. Okay. Pushkar, what are command line arguments? Yes, you are a little bit correct, but try to be more precise on that.
ओके, सिंटैक्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। यान Argument which are given at the runtime. arguments which are given at runtime to the main method. How do you give main method को input कैसे देते हो आप? How do we give that input? Execution time. What is the command to execute a program in Java? Java space class name. कौन सा क्लास नेम? कोई भी क्लास नेम जिसके अंदर मेन मेथड हो, फॉलोड बाय आर्गुमेंट्स। और वो आर्गुमेंट स्टोर होंगे आपकी मेन मेथड में जो वेरिएबल है। व्हाट इज दैट? ARGS, एरे ऑफ स्ट्रिंग। ओके, is there Samrat? If I have to overload a constructor, how do I do that? Yes, what exactly overloading is? Constructor overloading. Overloading. You have to write multiple constructors in the same class. That is calling, right? But if I have to overload, I have to define multiple constructors. But what I have to change? So constructor ka parameters we change. Perfect. Either type of parameter or number of parameter. So that is a signature. That is called as signature. We have to change. Signature मतलब जो argument आपने दिखा है, parameters. That is something you have to, either number of parameters should change or type of parameter should change. So then only overloading will happen. Otherwise, there will be a duplication. Similarly, what is method overloading? So we define multiple methods in the same class with different signature. नाम सेम होता है, अलग होता है? हो सकता है नहीं, नाम सेम ही होगा. So name will be same. What is going to change? Signature, method signature. That is either number of parameter or type of parameter should change. So that is something we have to look. Then which methods? Okay, which methods we can overload? Can we overload main method, static method, private method? Yes. Final method? Yes. So we can overload private, final, static methods. तो कीवर्ड हम और भी देखने वाले हैं. Final keyword that we will look once oops concepts are done. Okay. Next, if I overload a method with same number of parameters, whether it will work? It will work, but we have to change the type. It will work, but we have to change the parameter type. Okay. I think we are covered on this. So what is the order of execution of instance block, static block, constructor in the one class? Let's say I have only single class. उस केस में क्या होगा? तो स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा कितने बार? एक ही बार. उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक इमीडिएटली कंट्रोल जाता है इंस्टेंस ब्लॉक में या कुछ होता है और? सो हर एक कंस्ट्रक्टर में दो लाइन होता है. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? कंस्ट्रक्टर कॉल. एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं है तो इम्प्लिसिटली सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. दैट इज वन थिंग. और दूसरा होता है, दूसरा लाइन क्या होता है? इंस्टेंस ब्लॉक. तो सुपर क्लास का कुछ है नहीं तो सीधा इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ द सेम क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड. वंस दैट इज डन, देन ओनली कंट्रोल विल कम बैक टू द constructor line. So that's being said. Any questions? Any questions so far?
Okay, that's fine then. So we are good. Good. You're doing good. You're revising. So let's start with a new component. That is, what is the next component we are trying to understand? That is nested classes. You already know a little bit, but let's try to understand. So what exactly nested classes? एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास लिखना. That is simple meaning of nested classes. A class defined inside another class is called as nested class. ठीक. Now there might be some changes. Nested class की मतलब थोड़ा बहुत configuration change हो सकता है depending on the different versions. Depending on the different versions. Now what are the different types? So static nested class. Then non-static nested class और inner class भी बोलते हैं हम. Then we have local inner class. Static nested class, non-static nested class or inner class. Then we have local inner class, anonymous class that we will talk about later on. But anonymous class, now there are some certain things about uh, lambda expression that also we will be learning later on. Method reference, ये बाद में हम पढ़ेंगे, but for just understanding, keep this. This is also kind of a nesting you can think of. So these are different types. So these three we will look once we know little bit of oops. Oops खत्म करने के बाद we will come to this. You will not be able to understand right away. So these three things we will talk about. ये भी आपको बहुत ज्यादा पूछे जाएगा. This is latest something features. Java 8 का features है. ये आपको आना चाहिए. This is something you should be. यही कोड आप देखोगे. So let's start with the first thing. ये तो क्लियर है कि आपको एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास डिफाइन किया तो दैट इज गोइंग टू बी अ नेस्टेड क्लास. अगर वो क्लास के पहले आपने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया देन दैट बिकम्स अ स्टैटिक नेस्टेड क्लास. अगर स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा दैट बिकम्स नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास. क्लास के अंदर डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ ऑल मेथड्स कंस्ट्रक्टर ब्लॉक्स. नाउ लोकल इनर क्लास क्या है? आप अगर कंस्ट्रक्टर ब्लॉक या मेथड के अंदर क्लास डिफाइन करते हो दैट बिकम्स लोकल इनर क्लास. जैसे आपने कोई वेरिएबल देखा होगा. वेरिएबल के तीन टाइप्स आपके पास कौन कौन से? इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल. अब लोकल वेरिएबल यानी टेम्पररी, मतलब जो मेथड के अंदर आपने डिफाइन किया उससे बाहर एक्सेस कर सकते हो क्या? नो. तो सिमिलरली लोकल इनर क्लास आप कहां पर डिफाइन करोगे? मेथड कंसीडर ब्लॉक के अंदर. वहीं पर डिफाइन करोगे, वहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, वहीं पर यूज करो. दैट लाइफ साइकिल इज विद इन दैट थिंग इटसेल्फ. That is called as local inner class, right? Then static non-static class के अंदर directly outside of all methods consider blocks we write these two classes, static nested class और non-static nested class. Static keyword लिखा तो that is what. अब अगर वो static nested class है so you already know that variable जैसे था. Now you can think of that structure is something common. That structure is something common. Now if you clearly see the variable analogy, you'll understand this. Now, can you tell me if I define a class as static nested class, what do you mean by this? Okay. This is going to be common for
whom? All the objects of that particular class. Let's say कोई class, let's say कोई भी class, उसके अंदर आपने class लिखा है, तो that particular class is going to be common for all the objects of the given class. Now, now tell me, if I have to access static nested class, do we need to create object of outer class? Outer class मतलब जो inner class मतलब एक बाहर वाली जो nested class के बाहर जो दूसरा class है. स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए या स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है क्या? नो. तो सिमिलरली इफ आई हैव स्टैटिक नेस्टेड क्लास, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नहीं समझे, फिर से एक बार. स्टैटिक वेरिएबल कैसे लिखा आपने? लेट्स से क्लास का नाम है ए क्लास. ठीक, तो लेट मी राइट इट. लेट्स गो देयर. Now let's say this is a class, or maybe this is one class I'm writing, class outer. ठीक. Now inside this class I'm writing a static nested class. Now can you tell me, I want to create object of this particular class A, or maybe I will just give a name as static nested. I want to create object of this static nested class. I want to create object of static nested class. My question was, do I need to create object of outer class? सॉरी, क्वेश्चन समझा मेरा? क्या क्वेश्चन है फिर से एक बार? हाँ हाँ, तो जरूरी है क्या? है क्या? Now, once again, if I have to access this variable, static variable, do I need to create object of this class? We don't need to create object. Similarly, if I want to create object of static nested class, I don't need to create outer class. So how do we access? इसका object कैसे create करोगे? Can you tell me? So what is static nested class? A class defined inside a class with static keyword. A class nested inside another class with a static keyword. That is nothing but static nested class. Simple. Now, do I need to create object of, ये तो what clear है आपको? Do I need to create object of outer class to access this particular class? No, right? So I want to create an object of that particular class, static class. Sorry, static nested class, static nested class. ठीक. अब मैं आउटर डॉट स्टैटिक नेस्टेड, आउटर डॉट वेरिएबल वैसे ही, आउटर डॉट स्टैटिक नेस्टेड न्यू, हाँ. सो यहां पर ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? whose object we are creating? Are we creating outer class object or static nested class object?
बहुत सारे लोग मतलब गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पर। आउटर क्लास का रेफरेंस किसका है? ओके, किसको किसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते? स्टैटिक क्लास का। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या? अरे इसका तो कर सकते हैं, ये क्लास है ना, क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि ना? अरे मेरा क्वेश्चन है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या हम? हाँ तो स्टैटिक किसके लिए है? तो अभी यहाँ पर क्या, मुझे बताओ, व्हाट इज समथिंग कॉमन? बोलो बोलो। हम्म, बना सकते हैं ना। आप आगे जाके इसे देखने वाले हो, यू आर गोइंग टू यूज दिस। जैसे मैप डॉट एंट्री, सो मैप क्लास से मेरा इंटरफेस है, उसके अंदर मेरा एक, थिंक ऑफ अ क्लास नाउ। ये कुछ एक यूज केस है जो आप यूज करने वाले हो, बट वेरी सिंपल केस, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, दिस इज वेरी सिंपल स्टफ। पहले तो क्या है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास डिफाइन किया विद स्टैटिक कीवर्ड। अब इसको आपको एक्सेस करने के लिए आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखो। जैसे वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वैसे इसे एक्सेस करने के लिए आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, दिस इज वन थिंग। अब यहां पर मैं तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आई एम नॉट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास, आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ नेस्टेड क्लास, आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ नेस्टेड क्लास। समझे? सो व्हाट इज इनर क्लास? व्हाट इज इनर क्लास without static keyword? First question, what is inner class? A class defined inside another class without static keyword. अब मुझे बताओ, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए क्या? चाहिए, दिस इज नॉन स्टैटिक। अब इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए रेफरेंस चाहिए, तो वैसे इसको भी एक्सेस करने के लिए रेफरेंस चाहिए। सो आई नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास, देन ओनली, सो आउटर डॉट इनर, इनर। अब यहां पर हमने यूज किया रेफरेंस, किसका? आउटर क्लास का, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास। यहां पर हमने यूज किया क्लास नेम टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक नेस्टेड क्लास। सो ये ध्यान रखना, सो दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ स्टैटिक नेस्टेड क्लास। समझे?
तीन चीजें समझ में आ रहा है. 3 questions. What is static nested class? Then do I need to create object of outer class? Then whose object we are creating? 3 simple questions. So आप देख के identify कर सकते हो what exactly um, static nested class is. This is how a static nested class look like. What is inner class? This is how a inner class look like. Simple. हाँ हाँ जाएंगे, उधर जाएंगे, पर एक एक क्वेश्चन जाते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्लियर है सबको? ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट थिंग. सो व्हाट इज स्टैटिक नेस्टेड क्लास? Yes, what is static nested class? Can you tell me? A class declared inside another. ठीक है. अब एक और चीज, अ क्लास डिक्लेयर्ड और डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड. अब मुझे बताओ, जो क्लास अपने स्टैटिक नेस्टेड क्लास डिफाइन किया, वेदर इट विल बी एबल टू एक्सेस आउटर क्लास का स्टफ. क्या क्वेश्चन है? ये वाला क्लास आउटर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है क्या? श्योर. It does not have access to whom? Instance members of the outer class directly. इसका एक्सेस नहीं है इंस्टेंस मेंबर्स का. नेक्स्ट, do we need to create object of outer class? करने की जरूरत है, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी. सो वी डोंट नीड टू. इट्स इट कैन बी इंस्टेंशिएटेड. इंस्टेंशिएटेड मतलब चलो थोड़ा सिंपल लिखे. इट्स ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट क्रिएटिंग outer class object. Simple. Its object can be created without creating outer class object. अब ये क्या कर सकता है? आउटर क्लास का क्या एक्सेस कर सकता है? नॉन स्टैटिक तो एक्सेस नहीं कर सकता. इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास, नॉट दी इंस्टेंस मेंबर्स. ध्यान रखना कैसे करना है, विल टॉक अबाउट दिस. एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल यूज करेंगे मोस्टली आगे जाके. मैप डॉट एंट्री, ये हम बहुत ज्यादा यूज करने रहे. जब की वैल्यू डेटा हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में देखेंगे, दैट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस मैप डॉट एंट्री. मैप के अंदर एंट्री है, मैप के अंदर एंट्री है. अब आपका क्वेश्चन, बिफोर दैट लेट्स सी एग्जांपल. maybe I can use this. ओके, ये हो आपका आउटर क्लास. ध्यान रखना, दिस आउटर क्लास, इसके अंदर हम क्लास लिख रहे हैं. सो यहां पर क्लास से पहले स्टैटिक कीवर्ड लिख रहे हैं. स्टैटिक क्लास, स्टैटिक nested class. This is called as your
So this is your simply static nested class. देख के पता लग गया आपको what exactly this is static nested class. Whether this particular class can access this member का outer class का क्या access कर सकता है ये? Only static members, non static नहीं. अब इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नो. अब फॉलोअप क्वेश्चन, इस क्लास के अंदर जो भी कंटेंट है एक्सेस करना है, इस क्लास के अंदर क्या हो सकता है? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक. स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर क्या हो सकता है? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक. तो स्टैटिक कैसे एक्सेस करोगे आप? क्लास नेम से. नॉन स्टैटिक किसका रेफरेंस? इस क्लास का जिसका एक्सेस करना है. अभी इसके अंदर स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हो आप? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक. स्टैटिक के लिए क्लास नेम, नॉन स्टैटिक के लिए परफेक्ट. ये समझ में आ रहा है राइट? हाउ डू वी एक्सेस द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास? इसके अंदर अगर स्टैटिक है तो क्लास नेम, नॉन स्टैटिक है तो परफेक्ट. ठीक. आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल यूज केस दैट यू रिमेंबर. Okay. Now let's see this. This is a popular use case that we'll be using. Let's say I am having a class called as constants. ठीक. ठीक है. अब मेरे पास देखो ये टिपिकल ऐसे यूज केस होता है. मैं कॉन्स्टेंट्स कुछ रखना चाहता हूँ कि डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, अलग अलग इसके लिए. अब कॉन्स्टेंट्स के अंदर माई सिक्वल के अंदर पब्लिक स्टैटिक क्लास डेव, और इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं. सो पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूजर नेम. ठीक. ठीक. Now if you look at this hierarchy, so MySQL के अंदर dev के अंदर ये सारे. तो similarly I'm going to have that is fine, both two are sufficient. Now if you look at this, ऐसे कुछ आपको hierarchy दिखाई देगा. ठीक. कॉन्स्टेंट नाम का क्लास है, उसके अंदर मेरा दो स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस है, MySQL एंड ओरेकल. MySQL के अंदर मेरे पास तीन, हाँ दो ही है यहाँ पर, ठीक है दैट्स फाइन. दो मेरे पास स्टैटिक नेस्टेड क्लास है. ओरेकल के अंदर भी दो स्टैटिक नेस्टेड क्लास है और उसके अंदर कुछ स्टैटिक मेंबर्स है. नाउ आई वांट यू टू प्रिंट ऑल ऑफ दिस स्टफ. क्या चाहता हूं मैं? ओरेकल और MySQL dev credentials, MySQL product credentials,
Similarly, Oracle dev credentials, Oracle product credentials. Now I want you to help me with this. Oh my god. Sir, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना पड़ेगा? इसमें कोई नॉन स्टैटिक है क्या कुछ? नहीं तो ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए? सर, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे? constant dot mysql, हम्म then reference variable mysql is equal to new constant dot mysql, फिर रेफरेंस वेरिएबल से डेव को कॉल करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल डॉट डेव। लुक एट दिस वंस. डेव माई सिक्वल डेटाबेस जो डेव इनोमंड के लिए है उसका क्रेडेंशियल तक कैसे पहुंचेगा? बहुत सिंपल है. इफ यू लुक एट दिस, वेरी सिंपल. डायरेक्टली. हाँ पुष्कर. अरे नहीं समझे अभी तक भी. हेलो सर, बोलो. ऐसे यानी कि mysql डॉट डेव डॉट यूजर नेम। तो यूजर नेम चाहिए मुझे. कहां पर है वो? कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स आ गए. कॉन्स्टेंट्स के अंदर कहां पर? माई सिक्वल. माई सिक्वल के अंदर कहां पर? डेव. डेव के अंदर. यही तो है, सिंपल. ये पासवर्ड. कॉन्स्टेंट्स डॉट माई सिक्वल डॉट डेव डॉट पासवर्ड. अभी आप कितनी भी लेंथ तक जा सकते हो. ये टिपिकली ऐसा कुछ यूज होगा. सिमिलरली आई वांट टू हैव प्रोडक्शन के लिए चाहिए मुझे. अभी आई वांट प्रोडक्शन. अब इंस्टेड ऑफ डेव, प्रॉड. प्रॉड. ये आपका प्रोडक्शन क्या हो गया? अब सिमिलरली व्हाट आई वांट credentials for Oracle. So constants dot Oracle dot dev dot username password yoga credentials. Then prod username, prod password. इजी. अभी तक मैंने किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहां पर? नो.
नाउ यू माइट आस्क, यार इतना मतलब क्यों करना है इसे, राइट? व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी क्रिएटिंग स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस? इसका वाई का आंसर आपके सामने है. व्हाट हैपेंस? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट तो वैसे भी अगर स्टैटिक क्लास के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन में, ये मैंने अलग अलग इसमें रखी है, तो मैं एक ही क्लास के अंदर लिख लेता, कॉन्स्टेंट्स के अंदर मैं सारी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स के अंदर ही लिख लेता. अभी आपने क्या लिखा है, कितने लाइन का कोड है आपके पास? माइस्क्ल के डेवलपर के चार क्रेडेंशियल्स और ओरेकल के चार, 8 लाइन लिख लेता मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के अंदर डायरेक्टली. राइट, डायरेक्टली अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल्स लिख लेता कहां पर, कॉन्स्टेंट्स के अंदर, तो भी चल जाता, राइट? तो ये इतना नेस्टिंग क्यों किया मैंने? कंफ्यूजन हो रहा है किसके लिए? हाँ, अगर मैं सारा सब कुछ कॉन्स्टेंट्स के अंदर ही लिख लेता सारे वेरिएबल्स, तो क्या गड़बड़ होता? कॉल भी तो डायरेक्टली कर सकते थे ना आप. अब एक सोचो, मैंने यहाँ पर यूजर नेम सब जगह सेम ही दिखाई दे रहा है, राइट? अगर मैं सारा सब कुछ कॉन्स्टेंट्स के अंदर लिख लेता तो क्या करना पड़ता? सब कॉल की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, मेथड को कॉल करते हैं हम, वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, एक्सेस की बात नहीं हो रही यहाँ पर. क्या करना पड़ता? मुझे वेरिएबल के नाम ही चेंज करने पड़ते. आई हैव टू राइट डिफरेंट नेम्स, नाम बड़े हो जाते बहुत, और थोड़ा ऑर्गेनाइज भी नहीं दिखता. सो एवरीथिंग विल बी इन वन फाइल, everything will be under one class itself. So for easy organization, for logical organization, that also we use this. तो यहां से थोड़ा समझ में आ रहा है ना, इसको देख के समझ में. हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ता? माई सिक्वल यूजर नेम, माई सिक्वल पासवर्ड, माई सिक्वल डेव यूजर नेम, माई सिक्वल डेव पासवर्ड. तो ऐसे मेरा नाम लिखना पड़ता बहुत बड़ा. सो दैट इज वन थिंग. समझे? व्हाई आर वी डूइंग दिस? वाई क्वेश्चन क्लियर है आपका? सो लॉजिकल ग्रुपिंग करते हैं हम, यहाँ पर क्या करें, लॉजिकल रिलेटेड कोड साथ में लिखने का ट्राई कर रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस फॉर रीडेबिलिटी पर्पस. ठीक, तो ये मोस्टली यूज के साथ यूज करोगे. दिस इज वन थिंग. क्लियर है यहाँ तक? ओके. सो आई nested classes to logically group together. We use this to logically group classes together. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Now next we have, that is इसका उल्टा, नॉन स्टैटिक और इनर क्लास भी बोलते हैं इसे. व्हाट वी कॉल इट एज नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, और इनर क्लास भी बोलते हैं. चलो, a class declared inside another class without static keyword. Now it does not have access to instance members. क्या लगता है आपको? एक्सेस कर, इसको होगा एक्सेस, क्यों? Now its object can be created without creating outer class object. Is it true? अब क्वेश्चन है कि, चलो ये तो क्लियर है, फर्स्ट लाइन की नॉन स्टैटिक क्लास है,
डिफाइन इनसाइड अनदर क्लास विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, ये तो देख के समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि ये आउटर क्लास का कौन सा चीज एक्सेस कर सकता है, आउटर क्लास का क्या एक्सेस कर सकता है? It holds an implicit reference to the outer class instance. So it can access all members. उसमें static as well as an instance of outer class. ये सब कुछ एक्सेस कर सकता है. It holds an implicit reference to the outer class instance. It can access all members, static, non-static. Now, very important. अब इस क्लास पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? It needs an outer class object to create its own object. Create its own outer class का ऑब्जेक्ट चाहिए. Now think of I created 5 objects of outer class. अब ये नॉन स्टैटिक है. So this particular class is a नॉन स्टैटिक. तो मुझे बताओ, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिला, उस रेफरेंस का यूज करके मैंने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया 10. थिंक ऑफ आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक, आउटर का यूज किया, उसका यूज करके मैंने ऐसे 100 ऑब्जेक्ट बनाए. किसके? इनर क्लास के. देखो यहां पर आउटर क्लास है मेरा ऑलरेडी, वो रेफरेंस मिला, उस रेफरेंस का यूज करके मैंने जो इनर क्लास है, ठीक, उसके ऐसे 100 ऑब्जेक्ट्स बनाए. थिंक ऑफ दिस. नाउ आई क्रिएटेड अनदर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट. Using that reference, I created another 100 inner objects, inner class objects. Now, what do you think? कुछ समझ में आ रहा है? Now, इसको ऐसे याद रख सकते हो. Each inner class object is tied to a specific outer object. That was not the case with the static nested class. That was not the case with static nested class. तो यहां पर क्या है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सो दैट विल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर आउटर क्लास ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट समथिंग कॉमन. थिंक ऑफ आउटर क्लास के मैंने 10 ऑब्जेक्ट बनाए और 10 ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने इनर क्लास के 10 अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए. सो दैट 10 इनर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट समथिंग कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. सो ईच इनर ऑब्जेक्ट इज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर आउटर क्लास ऑब्जेक्ट. इसको ध्यान रखो. ये 100 ऑब्जेक्ट्स किसको बिलोंग करेंगे? आउटर, ये वाला ऑब्जेक्ट को. दिस वन आउटर. समझ में आ रहा है? सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफिकली टाइड टू अ आउटर क्लास ऑब्जेक्ट. क्लियर? क्या क्या कर सकता है? आउटर क्लास का सारा चीज एक्सेस कर सकता है. देन आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी इसका ऑब्जेक्ट बना पाओगे. और ईच इनर क्लास ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ परफेक्ट.
This is simply your inner class. क्यों करते ये? लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए. अब ये क्लास, दिस कैन एक्सेस एवरीथिंग फ्रॉम आउटर क्लास, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, एवरीथिंग, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं. Now last, local inner class. So what do you think? A class defined inside a method, inside a method, constructor, or block. A class defined inside a method, constructor, block of the outer class. अब जैसे लोकल वेरिएबल आपको याद है, think of same story, static, instance, local variable के around also. So similarly, if this particular class I'm defining inside a method, can we access outside? तो इसका स्कोप क्या है? Is limited. कहां तक? To that method. अरे क्लास कैसे? So it can't be used outside it. और बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले. So this is particular class. Oh, sorry. Now, I have any method that can be static, non-static, constructor, block, whatever. Now, inside that, I'm going to create a class. So it can be any method, void outer method. कोई भी मेथड हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है इसके अंदर. सो लेट्स से क्लास लोकल इनर. दिस इज योर इनर क्लास. और इसका स्कोप क्या है? व्हाट इज द स्कोप? आप इसी मेथड के अंदर उसे डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट इसी के अंदर क्रिएट करो और इसी के अंदर एक्सेस करो. So this is what we will be mostly doing. बहुत ज्यादा क्लासेस हम क्रिएट करने वाले हैं. सो मेन मेथड के अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हो. लेट्स से क्लास स्टूडेंट, जो मैंने अभी तक आपको बताए थे, बहुत सारे टाइम क्रिएट किया था मैंने. वॉइड डिस्प्ले, ठीक. नाउ इफ यू ट्राई टू एक्सेस दिस आउटसाइड, यू कैन नॉट डू दैट. मेथड के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर क्लास को. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, कॉल करेंगे मेथड यहीं पर. सो सब कुछ जो भी लाइफ से इधर ही है, सब कुछ मेथड के अंदर है. सो दिस इज योर लोकल इनर क्लास. Scope is restricted to only this particular method. Clear? Easy? Now बाकी और भी जो 3 classes है, we'll be talking about once we know the OOPS concepts. That time we will cover. But if you want to look at how does that look like, तो anonymous class यानी एक class बिना नाम का, a class which is defined without a name. But अभी आपको बता के कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा. So I will explain that once you complete the OOPS concept. That time you will understand this. When you understand the little bit of inheritance, polymorphism, that time an abstraction. After that, we will try to understand this. तीनों चीज, anonymous class, lambda expression and method reference. Very important.
So with that, we complete your class components. Now, at least by looking at the code, you should understand what is there. Keywords, बहुत सारे words आप आगे देखने वाले हो, बहुत ज़्यादा words. But this is what it look likes. अभी oops हम add on करेंगे, but आपको mostly जो भी projects होंगे वहाँ पर क्या दिखाई देगा? Packages, then classes के अंदर ये सारा सब कुछ. तो ये देख के आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि what is there, right? अब लॉजिक सब कुछ नहीं समझ में आएगा इमीडिएटली, बट एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आएगा कि दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज. ये वेरिएबल है, ये मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये ब्लॉक है, नेस्टेड क्लास है. इसको ऐसे एक्सेस करते हैं. व्हाई वी आर राइटिंग कंस्ट्रक्टर, एटलीस्ट ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. व्हाई वी आर राइटिंग मेथड्स, व्हाई वी आर राइटिंग ब्लॉक्स. तो एटलीस्ट इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, यू आर इन अ गुड सिचुएशन नाउ. आई वांट वन क्विकली आंसर फ्रॉम यू गाइस. चलो. Akshay, tell me all the components that we can write inside a class with subtypes. Variables लिख सकते हो, methods लिख सकते हो, then एक क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हो वही पूछ रहा हूं मैं बस. पढ़ा नहीं किया. ये सयान वेरिएबल्स लिख सकते हो, मेथड लिख सकते हो. दूसरा कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, परफेक्ट. ब्लॉक लिख सकते हैं, देन नेस्टेड क्लासेस. वेरिएबल के क्या क्या टाइप्स देखे आपने? लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक. वैसे मेथड की भी इंस्टेंस, स्टैटिक. कंस्ट्रक्टर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरामीटराइज, copy constructor. Blocks, we have instance block, static block. Nested classes, we have static nested class, non-static nested class, local element class, then आगे anonymous class, lambda expression and method reference. That is something we'll talk later. Now let's quickly finish off your access specifiers. You already know access specifiers, but I'm just telling you this. So what do you mean by access specifiers? Okay. So these are some keywords. These are some keywords. These are some keywords using which we can restrict the scope or visibility of a class and its component. क्या कर सकते हो आप? These are some keywords using which we can restrict the scope or visibility of a class and its components. अगर आपने याद होगा आपको, so what is the high level package? मैंने आपको बताया था. सबसे पहले क्या होगा आपका? प्रोजेक्ट फोल्डर होगा आपका. उसके अंदर पैकेज, इट्स ए पैकेज P1, P2, P3, और इसके अंदर कुछ क्लास C1, C2, right. Now let's say this is C1, C2, C1, C2, C1, C2. तो मेरे पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा, प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर पैकेजेस होंगे,
पैकेज के अंदर क्लासेस होंगे और क्लासेस के अंदर क्या होता है, क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स, मेथड्स. सो व्हेन आई से, अभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा आपका. सो इफ आई यूज एक्सेस स्पेसिफायर्स, then we will be able to restrict. Now, if I use a access specifier as a private to a class component, then what it means? तो सबसे छोटा स्कोप आप देखो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेवल स्कोप है, उससे छोटा पैकेज, उससे छोटा क्लास. अगर मैंने कोई क्लास के मेंबर को प्राइवेट बना दिया, then that particular component you cannot access outside the class. ठीक. अगर मैंने किसी क्लास कंपोनेंट को बना दिया एज डिफॉल्ट, तो मैं उसे इस पर्टिकुलर पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता. अभी के लिए डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड अगर कर दिया मैंने उसको, तो उस पर्टिकुलर क्लास और उस कंपोनेंट को मैं क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता. अगर मैंने कोई क्लास के कंपोनेंट को पब्लिक बना दिया, दैट मीन्स आई कैन एक्सेस इनसाइड द क्लास, इनसाइड द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज आल्सो. I can access that from outside the package also. So this is the meaning of access specifiers. So when a class component is public, what it means? You can access that inside the class, inside the package, or different package also. When I say private, private का मतलब होता है you cannot access that outside the class. When I say it is default, it means you cannot access that outside the package. That is the scope. समझे what do you mean by access specifier? So there are 4 access specifiers. Now question है कि आप उसे कहां एक्सेस कर सकते हो? सेम क्लास, सेम पैकेज, सब क्लास एंड डिफरेंट पैकेज. सब क्लास हम पढ़ेंगे, दैट शुड बी द नेक्स्ट क्लास. अगर मेरा एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट यानी आप कुछ नहीं लिखते हो, तो वहां पर नो मॉडिफायर. देन उससे थोड़ा सा अच्छा, वी हैव प्रोटेक्टेड, यहाँ पब्लिक. नाउ पब्लिक का मतलब क्या होता है? इट्स सिंपली वेरी सिंपल. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर एक्सेस स्पेसिफायर मेरा प्राइवेट है, तो कैन आई एक्सेस दैट आउटसाइड द पैकेज? कैन आई एक्सेस in the subclass? Whether it is default, whether it is protected, whatever the access specifier, same class में आप access कर सकते हो. अगर मेरा access specifier प्राइवेट छोड़ के कोई भी है, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, तो सेम पैकेज में आप एक्सेस कर सकते हो. डिफॉल्ट सब क्लास, जब चाइल्ड क्लास की बात करेंगे तो पब्लिक में तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल. तो डिफॉल्ट के टाइम पे आप यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते डिफरेंट पैकेज में. तो यहां पर डिफॉल्ट में सब क्लास में आंसर आपका एस भी है और नो भी है. सब क्लास आपका अगर सेम पैकेज है, सब क्लास अगर सेम पैकेज है तो एक्सेस कर सकता है, नहीं डिफरेंट पैकेज. अगर सब क्लास आपका सेम पैकेज में है तो एक्सेस कर सकता है, अगर डिफरेंट में है तो नहीं कर सकता. तो अभी के लिए बस सिंपली याद रखो, नहीं बोल दो सीधा सीधा. ठीक. व्हाट अबाउट प्रोटेक्टेड?
सब क्लास एक्सेस कर सकता है, डिफरेंट पैकेज नो। अभी यहां पर दो चीज आपको बस याद रखना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, बाकी तो इट इज वेरी मच क्लियर। एक एक लेयर से आपका रिस्ट्रिक्शंस मतलब ओपन हो रहा है, पब्लिक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, प्रोटेक्टेड ओनली रिस्ट्रिक्शन इज डिफरेंट पैकेज, डिफॉल्ट सब क्लास एज वेल एज डिफरेंट पैकेज देयर इज रिस्ट्रिक्शन, एंड प्राइवेट ओनली विद इन द सेम क्लास। ठीक, नाउ यहां पर एक और चीज याद रखना, outer class cannot be private or protected, otherwise compile time error. This is very much important, you remember this. आउटर क्लास को आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं रख सकते। इजी? Now look at this. मैंने एक P1 पैकेज बनाया, उसके अंदर एक क्लास बनाई है, दूसरा पैकेज P2 उसके अंदर क्लास B। ठीक, now look at this. Class A is in package P1, class B is in package 2. I want to create object of A class, A equal to new A. ठीक, I may want to do that. So A class is in different package, B class is in different package, तो इसलिए मैंने उसे import किया. The moment I make this class as default, so what it is? Only accessible in same package. तो दूसरे पैकेज में मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ क्या? Can I access that? No. Why? Perfect. तो आपको compile time error start हुआ. Is not public. तो ये पब्लिक है, इसलिए तो मैं उसे कहाँ एक्सेस कर पा रहा हूँ? दूसरे पैकेज में भी. The moment it is default, I am not able to do that. Now outer class cannot be private. Protected also. Otherwise compile time error. अगर लिखे वो लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो? ओनली पब्लिक और डिफॉल्ट, कुछ नहीं मतलब डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट लिखा है मैंने, तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरे पैकेज में उसे एक्सेस नहीं कर सकते, सेम पैकेज में। सिंपल। नाउ आई हैव दिस मेथड, ए क्लास की मेथड है। नाउ दिस इज समथिंग प्राइवेट, दिस इज समथिंग प्राइवेट, और यहां पर मैं कुछ क्लास लिख रहा हूं, क्लास टेस्ट। ध्यान रखना यहां पर मैं ए क्लास तो एक्सेस कर पा रहा हूं, ए क्लास का ऑब्जेक्ट भी मैंने क्रिएट किया। नाउ डू यू थिंक आई कैन एक्सेस दैट डिस्प्ले मेथड? व्हाई? उसे हम सेम क्लास में एक्सेस कर सकते, प्राइवेट इसलिए आप क्लास के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। सेम स्टोरी विद द वेरिएबल, सेम स्टोरी विद द मेथड एज वेल। समझे? प्राइवेट है इसलिए आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, अब प्राइवेट हटा दिया, राइट? नाउ लेट मी डू द सेम स्टोरी देयर इन क्लास बी। A dot display. What is happening? पहले मैंने क्लास के बाहर एक्सेस करने का ट्राई किया, प्राइवेट था तब, अब प्राइवेट है।
अब देखो कैसे रिस्ट्रिक्शन ऐड होगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसको हटा दिया, डिफॉल्ट कर दिया, सेम पैकेज में आप एक्सेस कर सकते हो, सेम पैकेज में आप एक्सेस कर सकते हो, सेम क्लास सेम पैकेज, यहां पर different package, you'll get compile time error. समझे? क्लियर कट है? आर वी एबल टू मेक सेंस? ठीक, ओके, ये तो समझा आपको कि प्राइवेट यानी आप क्लास के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सेस दैट, राइट? Now let me make this all as static. ठीक, ये सारे स्टैटिक है, so I don't need to create object. Now let me mark this as also, this is private, this is private, this is default, this is protected, and this is public. ठीक, now within the same class I'm trying to access ये सारे, is there any problem? सेम क्लास आप कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर हो, डजंट मैटर, यू विल बी एबल टू एक्सेस विद इन द सेम क्लास, आर यू एबल टू एक्सेस? यस. व्हाट अबाउट डिफरेंट क्लास? a dot x, a dot y, a dot z, a dot w. सो प्राइवेट नहीं कर सकते, एक्सेस प्राइवेट, एक्सेस प्राइवेट. आप एक्सेस नहीं कर सकते. लेट मी गो टू द सम अदर क्लास, लेट्स से क्लास b. व्हाट डू यू थिंक? x is private, y is default, z is protected, and this is public. That's the reason you are able to access. I hope that makes sense. Clear है? Just look at this, so you will get an idea. Easy? Make sense? चलो बात करते हैं. Now, simple questions.
ठीक है. Now carefully see this. Now what is the access specifier here? If you do not write anything, default, right? So default मतलब आप सेम क्लास से एक्सेस कर सकते हो, सेम पैकेज. यस, तो अभी यहां पर मैं एक्सेस कर सकता क्या उसे? कर सकता हूँ, राइट? Student dot age equal to let's say -100. What is the problem? Do you see any problem? लेट्स से अभी वो चल रहा था जंतर मंतर पे, कुछ तो चल रहा था वो कॉन्फ्रेंस कुछ तो. अगर वहां पर लेट्स से कोई सिक्योरिटी नहीं होता, लेट्स से मोदी साहब को कोई सिक्योरिटी नहीं होता, या वो कौन मंत्री मिनिस्टर, अगर उसको कोई सिक्योरिटी नहीं होता, डायरेक्ट एक्सेस होता पब्लिक को, सो व्हाट डू यू थिंक? क्या होता? मतलब बताने की जरूरत नहीं, राइट? डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? यू हैव गिवन डायरेक्ट एक्सेस टू योर डेटा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, राइट? आपके ऑब्जेक्ट को, लेट्स से पॉलिटिशियन नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट है, क्लास पॉलिटिशियन, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया आपने. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? डेटा कोई भी चेंज कर रहा है, पूरा स्टेट बिहेवियर सब कुछ चेंज हो रहा है उसका, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट. पहले दो हाथ थे, पहले एक ही हो गया, फिर बाद में दो पैर थे, एक ही बन गया. ऐसा भी हो सकता है, राइट? कुछ भी गड़बड़ हो सकता है. सो व्हाट डू यू थिंक? डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज है यहां पर, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो डेटा को. योर डेटा एनीवन कैन एक्सेस, राइट? और उसका जो चाहिए वो डेटा सेट कर सकता है. ये डेटा को कोई अभी कंट्रोल है क्या कुछ? इज देयर एनी कंट्रोल राइट नाउ? एनीवन कैन एक्सेस. और कोई लॉजिक है क्या वैल्यू सेट करने से पहले? कोई, you can set any value possible. Why that is possible? Because data is not restricted. Data is not restricted. Now, if I make this as private, so what happened? अभी आपने डेटा रिस्ट्रिक्ट कर दिया. यू हैव रिस्ट्रिक्टेड दैट. तो एक बन गया कि आप उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते. तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि आप उसका डेटा कैसे चेंज करोगे, या वैल्यू कैसे एक्सेस करोगे? So I want to set the value for these two variables. How do I set? How do I set? प्राइवेट है तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. Now how can you access that? सेम क्लास में
क्लास नेम से, ये नॉन स्टैटिक है। अब ये क्लास नेम से अगर मैं एक्सेस करता है इसको, कब एक्सेस कर पाता इनको मैं? स्टैटिक, ये नॉन स्टैटिक है ना, तो इसको तो आप ऐसे ही एक्सेस करोगे रेफरेंस से। सो हाउ डू वी चेंज? थिंक ऑनलाइन, विदाउट गूगलिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग। यस, जैसे आप कोई, जैसे मोदी साहब को मिलना है आपको, राइट? आप कैसे जा सकते हो मिलने? सिक्योरिटी थ्रू जा सकते हो ना। दे विल फर्स्ट चेक यू if there is weapon or not. If there is no weapon, they will let you go with proper permissions and everything. तो आप डायरेक्टली जा रहे हो क्या? नहीं। कैसे जा रहे हो? थ्रू सिक्योरिटी चेक्स, थ्रू पब्लिकली एक्सेसिबल, दे आर पब्लिकली एक्सेसिबल। जैसे कोई सिक्योरिटी, आप उनको एक्सेस कर सकते हो, हाँ जा सकते हो उनके पास, जा सकते हो ना। यस, तो सिमिलरली यू कैन राइट समथिंग। अब ये आपको पता है कि कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर हो, विद इन द सेम क्लास आप उसे एक्सेस कर सकते हो। व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर विद इन द सेम क्लास, कैन यू एक्सेस? यस। अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि पब्लिक मेथड लिखूं, तो if I write a public method, if I write a public method, let's say public void set age, और वो एक्सेप्ट करता है int age. Now I'm going to do a simple check. If age is greater than 0, then only I'm going to set this dot age. Otherwise no. कब सेट करोगे आप? एज ग्रेटर देन 0 है तभी। अब ये तो आपको पता है कि प्राइवेट है, इसलिए नहीं चलेगा ये प्राइवेट डेटा, ये भी नहीं चलेगा। तो यहां पर कंपाइल टाइम एरर आएगा आपको, दिस विल नॉट वर्क। तो अभी मैंने दूसरा क्या तरीका ढूंढा है? नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड। कौन सी मेथड? सेट एज, स्टूडेंट डॉट सेट एज। अब यहां पर -100 दिया, तो क्या लगता है आपको वैल्यू सेट होगी? नो no. तो यहां पर ये चेक करेगा, तो यहां पर मैं सिंपली वैल्यू सेट 23, नाउ द वैल्यू विल बी सेट। तो सिमिलरली आई एम गोइंग टू राइट a public method void set name। यहां पर भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, मैंने नहीं लिखा। तो आप क्या कर रहे हो अभी? यू मेड योर डेटा सिक्योर बाय मेकिंग देम एज प्राइवेट। हाउ डू यू डू सिक्योर योर डेटा? डेटा सिक्योर कैसे किया आपने? उसको प्राइवेट कर दिया, डेटा को प्राइवेट कर दिया, लेकिन उसको वैल्यू सेट करने के लिए क्या किया आपने? पब्लिक मेथड्स लिखे। यू डिड अ पब्लिक मेथड्स। तो हर एक वैल्यू सेट करने के लिए एक मेथड, और वैल्यू गेट करना है। अभी मुझे वैल्यू रीड भी तो करना है। स्टूडेंट डॉट सेट नेम। स्मार्ट हो गया, आज से सम्राट को स्मार्ट बोलेंगे अपन। चलो, सो वी हैव सेट द वैल्यू। अब मुझे वैल्यू प्रिंट भी तो करना है, तो कैसे एक्सेस करोगे आप? एज प्लस समथिंग, स्टूडेंट नेम। हाउ डू आई डू दैट? जैसे आपने वैल्यू सेट करने के लिए मेथड लिखी है, वैसे ही आप क्या करो वैल्यू गेट करने के लिए। तो पब्लिक इंट गेट एज, रिटर्न एज, गेट नेम, रिटर्न नेम। तो आपने क्या किया? कितने मेथड्स लिखे? 4 मेथड्स लिखे टू गेट वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज। तो यहां पर आप लिखोगे स्टूडेंट डॉट गेट एज, स्टूडेंट डॉट गेट नेम। तो ये अभी जो आपने किया, दीज आर कॉल्ड एज पब्लिक setters and these are called as public getters।
तो पब्लिक सेटर किस चीज के लिए? वैल्यू सेट करने के लिए, और गेटर्स वैल्यू गेट करने के लिए। क्यों किया ऐसे हमने? Why did we do this? ये इतना तामझाम, डेटा को हम सिक्योर कर रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग डायरेक्ट एक्सेस, वी वांट टू सिक्योर ऑब्जेक्ट्स डेटा। व्हाट वी आर ट्राइंग टू सिक्योर हियर? We are trying to secure objects data. So how did we secure objects data? We made your data members as private and we access them with the help of public getters and setters. Value set करने के लिए setters, value get करने के लिए getters. Right? अब ये जो प्रोसेस किया है इसका फायदा क्या है? You get a better control on your data. बेटर कंट्रोल मतलब आप जो चाहिए वो वैसे कंडीशंस लगा सकते हो, डेटा कैसे वैल्यू सेट करना है। योर डेटा इज नाउ सिक्योर। अब जो आपने ये जो किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। सो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन डूइंग? वी यूजिंग इनकैप्सुलेशन। अभी जो हमने किया दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। सो व्हाट वी डिड विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन किया मतलब क्या किया? So what is the use of encapsulation concept? If you implement that, you will secure your objects data. So using the concept of encapsulation, what we do? We secure objects data. And how do we secure objects data? By making data members private and accessing them using public getters and setters. Encapsulation ये फायदा देता है। So encapsulation में हम क्या करते हैं? डेटा और मेथड्स इनको साथ में रखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उसका objects data and methods we bind together as a single unit. So how do we achieve or implement encapsulation? By making data members private and accessing them through public getters and setters. ये simple encapsulation concept है आपका, समझे? So what is encapsulation? This is one of the OOPS concept, object oriented programming concept. In that we have first concept that is called as encapsulation. बहुत ही simple है। So what is the use of encapsulation? To make your data secure, secure your objects data. अभी जो UPS कॉन्सेप्ट है ये सारी कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट के बारे में बात करती है। तो पहली कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट के किस एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है? इनकैप्सुलेशन टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स डेटा सिक्योरिटी। Encapsulation is one of the OOPS concept which talks about objects data security. And how do we secure objects data? By making data members private. And how do we access them? Using public getter and setter methods. Setter methods are used to set the values for instance variables and getter methods are used to get the values for instance variables. अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो उसके लिए चार मेथड मुझे लिखना पड़ेगा। इंस्टेंस वेरिएबल, दो गेटर्स और दो सेटर्स। ठीक, अब इसी का एक नया वर्जन आया है, ये सब कुछ मतलब हम पढ़ेंगे आगे। नाउ थिंक ऑफ, मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, रियल टाइम में तो बहुत सारी फील्ड्स होगी स्टूडेंट के पास, 50, 100 स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, बहुत दुनिया भर का इंफॉर्मेशन होगा। तो मुझे बताओ अगर 20 मेरे पास फील्ड है तो मेरे पास कितने मेथड्स लिखने पड़ेंगे मुझे? 40। 20 वेरिएबल्स है मेरे पास तो मुझे कितने मेथड्स लिखने पड़ेंगे गेटर्स और सेटर्स? 40। 100 फील्ड्स है तो 200 मेथड्स। तो 200 मेथड्स सब जगह वही काम हो रहा है, वैल्यू सेट करना, गेट करना। सो दिस वेरी रिडंडेंट कोड। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज लॉम्बॉक। लॉम्बॉक नाम की एक लाइब्रेरी है जो ऑटोमेट करती है, ये हमें मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ लॉम्बॉक। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए हम आगे क्या पढ़ेंगे? सो वी कैन यूज लॉम्बॉक लाइब्रेरी, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है उसको बाद में। वी कैन यूज लॉम्बॉक लाइब्रेरी, अभी नहीं देखेंगे, बाद में फ्रेमवर्क से टाइम। सो वी कैन यूज लॉम्बॉक लाइब्रेरी टू जनरेट गेटर्स, सेटर्स, कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर सकते बाय द वे हम, constructors, toString, hash code equals, ये सारी मेथड्स हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस लॉम्बॉक लाइब्रेरी। तो लॉम्बॉक लाइब्रेरी हम बाद में पढ़ेंगे,
बहुत सिंपल है, ये सारा आपका काम ऑटोमेट होगा। अगर आपको गेटर सेटर नहीं लिखना है तो जावा ने सोचा कि यार लॉम्बॉक लाइब्रेरी भी क्यों दे, तो उन्हें एक नया कॉन्सेप्ट दिया, न्यू कॉन्सेप्ट इन जावा 17, that is called as record. So what is happening? So ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको, record. So it is asking me to give some values. So let's say int id string title. Now this is a very powerful thing. ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सो मैंने क्या क्रिएट किया, दिस इज अ क्लास एक्चुअली, बाय द वे दिस इज अ क्लास आई हैव क्रिएटेड यूजिंग न्यू लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जावा 17। रिकॉर्ड बाद में पढ़ोगे आप, दैट्स फाइन, बट यहाँ पर रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट का यूज करके मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, तो वैसे में प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक, अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, लेट्स से 1 एंड लैपटॉप। सो प्रोडक्ट डॉट आईडी, ये सेटर जैसा नाम है, उसको वैल्यू दे दिया लेट्स से 100। प्रोडक्ट डॉट नेम, ये लिटिल बिट सॉरी टाइटल। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट? तो इम्यूटेबल क्लास मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई होगी, इफ यू रिमेंबर, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इम्यूटेबल क्लास? परफेक्ट, होशियार हो गया आप लोग, लेकिन मेरे साथ रह रहे के फायदा हो रहा है आप लोग का। लेकिन मैं गधा हो रहा है, उसका क्या करेंगे आपके साथ रह के? बोलोगे यार कैसे? वेरी गुड, सुपर। So if you look at this, I have created a class which has two fields, ID and title. Now that class object, I have created the object. I'm just now reading the content. I'm just reading the content, but I am not able to change that particular object content. Then this is immutable. तो record concept का use करके हम क्या कर सकते हैं? We use to create an immutable object where we have getters only. ठीक है, परफेक्ट। अरे जो वैल्यू है तो वही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने कंस्ट्रक्टर में, जो वैल्यू दी। अब यहां पर आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते उसको, प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल टू समथिंग, ऐसे नहीं कर सकते आप। सो व्हाट इज सेइंग? प्राइवेट एक्सेस, और सेटर तो वैसे मेथड ही नहीं आपके पास। आईडी इज प्राइवेट, आईडी इज प्राइवेट, सेटर है नहीं है, प्राइवेट है तो आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो उसे, नो। तो ये भी एक नया फीचर है, आप याद रख सकते हो, दिस इज समथिंग लेटेस्ट। कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल? ये, हाँ ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना।
तो स्टैटिक यूज करो तो कैसे एक्सेस करोगे आप? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या आपको? कौन सा? हाँ, प्राइवेट स्टैटिक रहा तो आपको क्लास नेम से एक्सेस करोगे आप। प्राइवेट है ना, तो उसके लिए आपको कुछ अलग लिखना पड़ेगा, फिर उसके लिए भी वैसे ही स्टैटिक मेथड लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कि मेरा कोई क्लास है, इट्स ए कनेक्शन यूटिल, ठीक, ये मेरा एक क्लास है, ठीक, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल कनेक्शन, या कोई भी अभी के लिए स्ट्रिंग लिख रहा हूं मैं, स्ट्रिंग, ठीक, ये मेरा कोई चीज, ठीक है, कनेक्शन नाम का कोई। नाउ हाउ डू आई गेट दैट, ये प्राइवेट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट कनेक्शन। इसको तो हम यहां पर कुछ ऐसे वैल्यू दे देंगे, डेटाबेस कनेक्शन, हाउ डू एक्सेस दैट, कनेक्शन यूटिल डॉट गेट कनेक्शन। परफेक्ट, जो चाहिए कंडीशन लिख ले सकते हो, मेथड है ना, उसके अंदर जो कंडीशन लॉजिक लिखना है, फिल्ट्रेशन लिखना है, क्राइटेरिया लिखना है, रूल्स लिखना है, वो आपकी मर्जी, राइट? There is one more question. What is singleton class? Perfect. So how can you create such class? So I am creating a class, let's say singleton. So I want you to create only one object of this particular class. Singleton S1. आप जितने चाहिए उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आप। सो हाउ डू आई क्रिएट अ सिंगलटन क्लास जिसका बस एक ही ऑब्जेक्ट बने? आप कंसिडर कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले तो कंस्ट्रक्टर को ब्लॉक कर दो ना आप। क्या करो आप? कंस्ट्रक्टर को ब्लॉक कर दो आप। So what happens when you make a constructor as private? एक्सेस नहीं कर सकते आप ऐसे डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास। अब आप आउटसाइड द क्लास इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो अभी ऐसे? नहीं, कंसिडर प्राइवेट कर दिया ना आपने, यू कैन नॉट एक्सेस दैट। तो मुझे ऑब्जेक्ट तो चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आप बाहर क्रिएट कर सकते हो क्या न्यू कीवर्ड का यूज करके? अभी तो नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसके अंदर ही ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप इधर ही लिखो ना कुछ ऐसे। तो मैंने क्या किया, प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंस इक्वल टू न्यू सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना के रखा है मैंने। किस क्लास का? सेम क्लास का यहाँ पर। उसे कैसे बना दिया? स्टैटिक। तो बार बार ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? ये वेरिएबल है, कैसा है? स्टैटिक वेरिएबल है, इसको कितनी बार मेमोरी मिलेगा? एक ही बार, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर एक ही बार बनेगा। अब बाहर की दुनिया को ऑब्जेक्ट चाहिए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड? राइट। अब मैं चाहता हूं कि
अब किसी को ये ऑब्जेक्ट दे दिया, अभी इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, सो दिस विल गिव यू कंपाइल टाइम एरर, राइट? इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, बट दिस विल नॉट वर्क, दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क, but I want an object. So how do I get that object now? आप फिर से करोगे तो what do you think? Are you going to get new object? No. इन दोनों का आईडी आप चेक करोगे, सेम ही आएगा। दोनों में क्या है? सेम रेफरेंस है, सेम रेफरेंस, इसलिए वो इक्वल आएंगे। दैट इज ट्रू। सो यू आर नॉट गेटिंग another object, you are getting the existing object. So this is how we create a singleton class. अब इसको ब्रेक भी कर सकते हो आप। So there is another question, how can we break singleton pattern? तो यहां पर ब्रेक करने के लिए आप क्या करो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकता है। सो मल्टी थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉजिक है आपका, राइट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला लॉजिक, इसको आप हटा, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, ठीक है? अब देखो यहां पर, तो आपका एक फुल प्रूफ चीज बन रहा है यहां पर, इफ इंस्टेंस इज नल देन ओनली क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब इस पर्टिकुलर चीज को आपको करना क्या है, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज करने से क्या होगा, इसको मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस नहीं कर सकते एक साथ। सो दिस इज बुलेट प्रूफ आपका सिंगलटन क्लास हो गया। अब और भी चीजें कर सकते हैं, बट अभी इतना आपको समझ में आएगा जितना मैंने आपको बताया। अब इसको मैंने सिंगलटन कैसा बनाया, विच इज फुल प्रूफ, ठीक है? चलो, सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव कवर्ड। एक्सेस स्पेसिफायर वी कवर्ड अबाउट, व्हाट अबाउट इनकैप्सुलेशन? So that also we covered, right? So what is encapsulation? It is one of the OOPS concept which talks about objects data security. So how do we implement encapsulation? We implement encapsulation by making data members private, providing public getters and setters method. So setter यानी method used to set the instance, private instance variable value, private instance variable value. Getter method used to get the private instance variable value. What is the benefit of encapsulation? By making class encapsulated, we get better control on the data. Tick. This is what we talked about. Then we also talked about Lombok library. So हम बाद में पढ़ेंगे उसको, बट अभी के लिए बस इट इज द लाइब्रेरी। क्यों यूज करेंगे आप घर जाके आज एक्सप्लोर करो। एनीवे विल बी लर्निंग दिस लेटर ऑन, बट अभी आप यूज नहीं करोगे उसको, जब तक हम एडवांस जावा स्टार्ट नहीं करते इसको यूज नहीं करोगे। मैन्युअली तुम गेटर सेटर सब कुछ लिखोगे, कंस्ट्रक्टर खुद लिखोगे, ठीक है? कब यूज करना है इसको, जब हम एडवांस जावा स्टार्ट करेंगे तभी आप उसको यूज करोगे, अभी यूज नहीं करोगे। बस आज एक्सप्लोर करो बस।
अदरवाइज आप ये गेटर सेटर भूल जाओगे लिखना फिर. So it is the library to generate getters, setters, constructors, then toString method, then hash code, equals, बहुत सारी मेथड है. ठीक. Then we also talk about record concept. Record in Java 17. ये भी है आपका नया लेटेस्ट फीचर, आप इसको भी, सॉरी, सो इट इज, किसके लिए यूज करते हैं इसको सलोनी? इट इज यूज टू क्रिएट एन immutable class. So that also we talked about. Immutable मतलब once we create an, अरे, once we create an object, then its content cannot be modified. I hope you remember this. ठीक. Now what is the assignment for you guys? Explore Lombok library. Then create immutable class without record. Create a singleton class. This is your assignment. That's fine. So we also talked about singleton class, right? So what is singleton class? For the given class, we can create only one object. And how to do that? How to create singleton class? How to create singleton class? क्या करोगे? हाँ बोलो. Make the constructor private. First thing, make the constructor private. क्यों? So that we cannot access it outside the class. Perfect. दूसरा क्या करना है? Create one static reference variable to hold the single object. Return the, ये आपको इंटरव्यू में बात करना है. Return the same object using static method. एक और कर सकते हो, to avoid multiple threads trying to create object, make the block of object creation synchronized. ये आप बाद में पढ़ोगे, बट अभी के लिए उसका क्या मतलब है. सिंक्रोनाइज लिखने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक दिस एज सिंक्रोनाइज्ड? सारा इंटरव्यू मटेरियल, बाय द वे, व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे, एवरीथिंग इज ऑल इंटरव्यू मटेरियल. सिंगलटन क्लास, इम्यूटेबल क्लास, रिकॉर्ड, इनकैप्सुलेशन, गेटर, सेटर, ये सारा इंटरव्यू मटेरियल. यू विल थैंक मी लेटर. So how do we create a singleton? This is how we create a singleton.
उसको एक्सेस कैसे करोगे? हाँ, ये वाला ध्यान रखना, दिस इज व्हाट यू विल रिमेंबर। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को भी नहीं आता है, सो ध्यान रखो इसको। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, यू विल गेट द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको सेम ही कंटेंट, मतलब ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। So both S1 and S2 will point to the same object, only one object. S1, S2 will both point to the same object. इसका एड्रेस सेम ही होगा, समझे? सो क्या किया पहले? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, किधर है? हाँ, ये प्राइवेट कर दिया, और ये स्टैटिक मेथड आपके लिए है। तो ही चीज किया, और यहां पर ये इसको प्राइवेट इंस्टेंस बना दिया। अगर फर्स्ट टाइम किसी ने मेथड कॉल किया तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो नल है ना बाय डिफॉल्ट ये। अब इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल। फर्स्ट टाइम कॉल किया तो ये नल होगा, तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जो है वही रिटर्न होगा। तो ऑब्जेक्ट एक ही बार बनेगा, वो स्टैटिक इस पे स्टोर होगा बस। क्लियर? Perfect. I think we are good for the day. We have covered a lot of ground today or tomorrow. So tomorrow we'll be covering your OOPS concepts. That is start with inheritance. Tomorrow mostly we'll be covering inheritance only, and then followed concepts.